یعنی صبح میں مومن ہے، شام میں کافر ہے، شام میں مومن ہے، صبح میں کافر ہے. لا يدخلون الجنت ابدا، جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. لیکن خبر کی زندگی کی ایک دن، ایک رات کے لیے آپ کے پاس کیا توشہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں آ کے ایک ساتھ جمع ہونا اور یہاں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. محترم حضرات، میں اپنے بیان کا آغاز آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا. حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5999 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی کے پاس کچھ قیدی پکڑ کے لائے جاتے ہیں، غلام بنا کے لائے جاتے ہیں. تو وہ قیدیوں میں، وہ غلاموں میں ایک عورت ہوتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کافی پریشان ہے اور پریشانی میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہی ہے، بڑی بے چین ہو کر پھر رہی ہے. اور پھر جو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے جہاں بھی نظر آتے ہیں توجہ کے ساتھ دیکھتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ ڈھونڈنے میں لگی ہے. ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، اور پھر اچانک سے اپنے بچے کو پا لیتی ہے. اس کا بچہ مل جاتا ہے. تو وہ عورت جو کہ در حقیقت اس بچے کی ماں ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، ایسے لگاتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگا کے پلانا شروع کرتی ہے. اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، پوچھ بتائیں کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ماں ہے. یہ ماں جس کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آیا تو اتنا بے چین ہو گئی، اتنا پریشان ہو گئی، ادھر ادھر جانے لگی، بہت گھبراہٹ میں تھی. جب بچہ ملا تو اتنا سارا پیار دے رہی ہے اور اس کی غذا کے لیے، اس کی پیٹ کے لیے، اس کے کھانے کی فکر کر رہی ہے. تو یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، للہ ارحم بعبادہ من ھذا. لوگوں، اللہ تعالی
अपने ईमान वाले बंदों पर भी इससे ज्यादा रहमो करम करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। एक माँ अपने बच्चे से जैसी मोहब्बत करती है, एक माँ के अंदर अपने बच्चे के बारे में, उसके सुख दुख के बारे में जो तड़प होती है, जो दर्द होता है, जो रहम होता है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे ज्यादा रहम करने वाले हैं। 70 माओं से बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत बोलते हैं, नहीं है, 70 माओं से ज्यादा है। 70 माओं की मोहब्बत क्या होती है? अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह का रहमो करम अपने बंदों पर उससे ज्यादा है। अल्लाह अपने किसी बंदे को जहन्नम में डालना, आग में जलाना पसंद नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है? कल क़यामत के दिन जो भी आदमी जहन्नम में जाएगा वो अपने करतूतों की वजह से जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला हमें जिंदगी दिया है। दुनिया में हमारी जितनी भी जिंदगी है, 60 साल, 80 साल, 100 साल, एक दिन इसका खातिमा है। एक दिन सबको मरना है। अल्लाह को मानने वाला भी मरता है, अल्लाह को नहीं मानने वाला भी मरता है। मुझे भी मौत आने वाली है, आपको भी मौत आने वाली है। मौत से जो आदमी डरता है, घबराता है, वो भी मरता है। जो आदमी नहीं घबराता है, आराम से रहता है, वो भी मरता है। मतलब क्या कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। तो मौत से जब छुटकारा नहीं है तो फिर हमें इतनी गफलत की जिंदगी में क्यों है? दुनिया की जिंदगी जी, आज हमारी दुनिया की जिंदगी आने आने कम होती जा रही है। पहले के लोगों की उम्रें 100 साल रहती थी, 200 साल, 500 साल, 800 साल जिंदगी। हमारी जिंदगी क्या है? आने आने कम हो रही है। जो बीमारियां हमारे बचपन 70-80 साल को बीमारियां आते थे, वो बीमारियां 30-40 साल में आ जा रहे हैं। पहले कमर के दर्द, घुटना के दर्द बूढ़े लोगों को आते थे, अब बच्चों को आ जाते हैं। जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। लेकिन आदमी किस गफलत में है मालूम? आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। इस पर हम सबका ईमान है कि ये दुनिया की जिंदगी आरजी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। हर एक मर्द, हर एक औरत जो यहां आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, सोचना यह है कि वो जब हमेशा की जिंदगी है तो वो हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे पास क्या तोशा है? दुनिया के लिए मैं कमा रहा हूं, मैं कमाने, खाने, बच्चों को भी खिला रहा हूं, घर वालों को खिला रहा हूं, यहां तक खत्म नहीं है। मैं खाने, बच्चों को खाने के अलावा जमा के, छोड़ के, बाकी रख के जा रहा हूं। बच्चों के लिए आदमी की फिक्र क्या? आज हर एक आदमी की फिक्र, मरा तो बच्चों को सहारा रहना है, नहीं मोटी बात बोलते, मर गए तो भी बच्चों को सहारा रहना, किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं बनना। बहुत अच्छी बात है जी, माशाअल्लाह। आप मर गए तो आपके बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना बोल के आप दिन रात मेहनत करें। दिन की मजूरी नहीं बस रही, रात भी लोग काम करते हैं, रात की मजूरी, नाइट शिफ्ट, वो भी काम करे। क्यों? बच्चों के वास्ते, बीवी के वास्ते, माँ बाप के वास्ते, उनको घर देना, उनके लिए जगह रखना, के लिए पैसा रखना, बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी तो फिक्र करना है कि आप अपने मरने के बाद पूरे घर वालों के लिए, पूरे खानदान के लिए खाने पीने के लिए छोड़ के जाएं। लेकिन खबर की जिंदगी की एक दिन, एक रात के लिए आपके पास क्या तोशा है? आपके पास कोई ऐसी नेकी है कि अल्लाह को बताए कि ऐ अल्लाह, मेरी एक ऐसी नेकी है कि ये नेकी तू कबूल करके मुझे खबर किताब से बचा ले। कोई नेकी है ऐसी? कोई ऐसा काम है? ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी के 40 साल है, ऐ अल्लाह एक नमाज भी खजा नहीं हुई, बोल सकते हैं? ऐ अल्लाह, जिंदगी में तू जितनी उम्र दिया, एक दिन भी बगैर कुरान की तिलावत के मैं नहीं गुजारा, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो फिर क्या है हमारे पास? अल्लाह को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए भाई आदमी पूरी जिंदगी में एक ही बात की फिक्र करता है, क्या? नाम, मेरा नाम अच्छा रहना, नाम अच्छा रहना, नाम नाम नाम।
आपको मालूम है दुनिया की एक कड़वी हकीकत, इंसान जब मर गया सबसे पहले उसका नाम लोग भूल जाते, सबसे पहले नाम भूल जाते। नाम भूल जाते बोले तो क्या है, आदमी मर गया क्या बोलते हैं, घर के अंदर से जनाब, हाजी साहब, अब्दुल्ला भाई को लेके आओ, बोलते नहीं, लेके आओ रे मुर्दे को, लेके आओ रे मैयत को, है कि नहीं? आपका नाम कहाँ है, आपका बड़ापन कहाँ है? दुनिया में जो नाम के वास्ते जीते थे वो नाम कहाँ है? लोग, अभी आप घर में हैं, आपकी मैयत डेड बॉडी घर में है, लेकिन लोग बोलते क्या है, मैयत, डेड बॉडी। आज इसको आप मानना पड़ता है कि आज बाहर के लोग छोड़ डालो, बाहर के लोग तो बाहर के है, घर के लोग भी आपकी डेड बॉडी खास घर में भी एक रात से ज्यादा नहीं रखते। कभी रखे हो देखे? कितनी भी मोहब्बत कर लो आप अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन जब इंसान की सांस खत्म हो जाती है वहीं उसका नाम खत्म हो गया, उसका स्टेटस खत्म हो गया, उसका मर्तबा खत्म हो गया, उसकी धन दौलत किसी और के नाम पे हो गई, किसी और के नाम पे हो गई। आज तक मालिक तू था, तेरे मरने के बाद तू मालिक नहीं है, तेरे बेटे हैं, तेरे बच्चे हैं। बात यहां को खत्म नहीं होती। जो भी माल छोड़ के गया मालिक बच्चे बन गए, लेकिन हिसाब किताब कौन देना है? बोलो, हिसाब किताब कौन देना है? आप देना है, खुद मैं देना है। खा रहे कौन? मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरे घर वाले, लेकिन अल्लाह के पास हिसाब किसको देना है? मुझे देना है। तो ये हिसाब के वास्ते हमें क्या तैयारी करें? आज मेरे भाइयों, माओ और बहनों, आज हमारे अंदर इस बात की बहुत बड़ी कमी है कि हम दुनिया के लिए जितना सोच रहे हैं, दुनिया के लिए जितने फिक्रमंद हैं, उसका एक 4 आने भर के हिस्सा भी आखिरत के लिए फिक्रमंद नहीं है। अपनी आंखों के सामने देखते हैं जनाजे और एहसास नहीं है, दिल पत्थर जैसे बन गए हैं। बयाना सुने, कभी जलसे में कुछ हंगामे बयाना सुने जोशीले, 1 दिन 2 दिन तक दिल में बड़ा जोश रहता है, उसके बाद खत्म, कहां के वहां। आप मालूम, आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत से पहले आने वाले जमाने कैसे रहते पेशन गोई पहले से बताए। एक हदीस मुबारका है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 118। अल्लाह के नबी लोगों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बादिरू बिल अमाली फितनन का क़ित्अल लैलिल मुज़लिम। ऐ लोगों, नेक अमाल करने में जल्दी करो, लेट न करो, ताखीर न करो। अब नहीं, कल करेंगे, आइंदा जुमा से शुरू करेंगे, रमजान आया तो सुधरेंगे, हज करने के बाद से सुधरेंगे, नहीं, नेक अमाल करने में लेट ना करो। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, क़ियामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा, इस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। आदमी सुबह में तो मोमिन होता है, शाम होते होते काफिर बन जाता है। शाम में तो मोमिन रहता है, दूसरे दिन सुबह उठने तक वो काफिर बन जाता है। कैसे? कैसे? जमाना देख लो, समझ में आया? जमाना देखो, लोगों को देखो। सुबह में एक बात, सुबह में पैसे लिए एक बात पे है, शाम हुए तक 1 लाख पे ज्यादा देता है, ले जाकर उसके हाथ में दे डालते जमीन के पेपर। आपका ईमान बिका दिए, आपकी बात बिका दिए, आपका वादा खत्म, आपका दीन खत्म। कितने लोगों को देखे नहीं, अच्छे अच्छे नमाजें पढ़ने वाले, जिंदगी में थोड़ा परेशानी आई, अल्लाह क्या अच्छा करा ले हमारे को, इतना नमाजा पढ़ को, इतना दुआया कर को, अल्लाह क्या अच्छा करे हमारे को, खत्म। अब दीन से नफरत, मस्जिद में कभी नजर भी नहीं आते, क्या अल्लाह क्या करे हमारे को, और दिन से फिर गए। यानी सुबह में मोमिन है, शाम में काफिर है, शाम में मोमिन है, सुबह में काफिर है। ईमान खत्म हो जा रहा है। आज ईमान की दौलत, ईमान की नेमत को समझने की जरूरत है, और उसके साथ हमें अपने घरों के बारे में फिक्र करना है। तवज्जो के साथ सुनिए बात, यहां बैठे हुए हर एक मर्द, खास करके औरतें,
اگر آپ کے گھر میں عورتیں ہیں تو آپ کے گھر کی عورتوں کے بارے میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو عورتیں آ کے سن رہی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ آج ہم اپنے گھروں کے بارے میں خبر لینا ہے. گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر کے بچے کیسے ہیں، لڑکے کیسے ہیں، لڑکیاں کیسے ہیں. اپنے گھر کی فکر کرنا ہے. کس کی؟ اپنے گھر کی فکر کرنا ہے. آج ایک ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، فتنہ ادھر ادھر نہیں ہے، فتنہ ہمارے ہاتھ میں ہے. موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک فتنہ کافی ہے انسان کو جہنم میں لے کے جانے کے واسطے. یہ ایک گناہ کافی ہے جہنم میں لے کے جانے کے واسطے. کیوں؟ صبح شام آج کا بچہ، آج کا نوجوان، آج کا بڑا، مرد، عورت، سب اس سے لگے ہیں. کوئی اس سے چھوٹ دور نہیں ہے. ہر کوئی اپنے سے اتنا قریب کرنا چاہتا ہے، اتنا قریب کرنا چاہتا ہے، عبادتوں کے موقع پہ بھی دور نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں نہیں، مسجد میں لے کے آتے، نماز ہو گئے بعد سلام پھیرتے کہ جو اٹھا لیے کیا کہ نماز قبول ہو گئی، بلکہ ووٹی پہ ہی سکا. نماز ہو گئی ختم. دیکھ رہے نماز ہو گئی، ادھر دعا نہیں ہے، ادھر کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نماز جانے تک، صف میں ٹھہرنے تک موبائل ہے، اور نماز سلام پھیرے جیسے ہی. زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے. انسان جو ہے اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو وہ 10 منٹ نہیں دے رہا ہے جو اس کو 3 گھنٹے دے رہا ہے. کتنے گھنٹے؟ 2-3 گھنٹے. کم سے کم ہر آدمی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے. اب نوجوانوں کا تو پوچھو مت کتنا وقت دے رہے ہیں. ایک بات دیکھ کے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. گھروں کے اندر جو نوجوان ہیں، یہ موبائلوں کی وجہ سے، ٹی ویوں کی وجہ سے ماں باپ کی قدر کرنا بھول گئے، ماں باپ کی عزت کرنا بھول گئے. ماں باپ کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے. ماں بات کر رہی ہے، باپ بات کر رہا ہے، باپ کچھ بولنا چاہ رہا ہے، اور بیٹا ہے کہ موبائل میں دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے. یہ پہلے ایک ضرورت تھی جی، ضرورت تھی کسی کو بات کرنا، فون کرنا. آج ضرورت نہیں ہے. آج کیا ہے؟ دیوانہ پن لگ گیا ہے. کیا لگ گیا ہے؟ دیوانہ پن. کیسا دیوانہ پن؟ سمجھ میں نہیں آتا. جو بچے پب جی کھیل رہے نہیں، کھیلتے وقت ان کا موبائل نکال لو ہاتھ سے، نہیں مارے تو جب بولو. وجہ کیا ہے؟ دیوانہ پن. چھوٹے بچے پہلے کھیلتے تھے، اب تو نوجوان بڑے بڑے عمران کے شادیاں ہو گئی. سنو کیا لے مار، تو مار، میں مار. کتنی ہنسی آتی معلوم. ایک وہ صحابہ تھے جو جنگوں میں تلواریں لے کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے. آج کا ہمارا مسلمان موبائل لے کے تو مار میں مار سمجھتا ہے، اور یہ پورے کام کر کے کیا بول لیتا ہے؟ جنت میں جانا فیسٹ. واہ، کیسا ہے ڈائلاگ ہے نا پورا. آدمی جو ہے پورے خوابوں کی دنیا میں، اور ایسے خوابوں کی دنیا میں کہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج ہمارے گھروں کی سب سے بری کہانی کیا ہے؟ ٹی وی اور موبائل. یہ دونوں چیزیں یہ ایک چیز نہیں ہے. اس سے آنے والے فتنے بھی ایک نہیں ہے. اس سے آنے والے فتنے کئی ہیں، بے شمار فتنے ہیں، سووں کے فتنے ہیں، ہزاروں کے فتنے ہیں. اور آدمی غفلت میں فتنوں میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ آدمی کو ان فتنوں کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ آدمی کس چیز میں جی رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا، کن چیزوں سے دور ہونا تھا. نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے. اور آدمی آج ہمارے گھروں کی انتہا کیا ہے معلوم؟ برائی کی، غفلت کی. میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج ٹی وی، موبائل کی وجہ سے خاص کر کے ایک بات، جو لوگ ذمہ دار ہیں، گھروں کے بڑے ہیں، ان کے سامنے گزارش، یہ ٹی ویوں کی وجہ سے گھروں کے اندر بے حیائی آ گئی ہے. بے حیائی. آدمی کو بے حیائی نظر نہیں آتی ہے. ایک ہی گھر کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، اور سب مل کے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کپڑے، ننگے بدن. اللہ اکبر. پورے بیٹھ کے ایک ساتھ. یہ خود گناہ کافی تھا انسان کو برباد کرنے واسطے. اوپر سے انسان
नौजवान जब कमरे में अलग हो जाता है, चार दीवारी में बंद हो जाता है और रात को मोबाइल निकालता है, अल्लाह जाने वो जाने क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। अल्लाह अकबर। एक जमाने में लड़का लड़की बात करना तो छुप के बात करना पड़ता था, आज वो मसला नहीं है। आज मोबाइल पे आपको नॉर्मल कॉलिंग ने वीडियो कॉलिंग भी, आप कहीं भी हो। और इस फितने में पड़ के, इस मोबाइल में पड़ के आपको अंदाजा है कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। आप समझ रहे हैं कि आपका बेटा आपकी बेटी घर के अंदर है, नहीं, उनका जिस्म तो घर के अंदर है, लेकिन उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी कॉलिंग, ये वीडियो कॉलिंग, ये नेटवर्क, ये सब क्या है, बाहर। ऐसी दोस्तियां जमा कर रख दिया है, आदमी देखने को चार दीवारी में है लेकिन बेहयाई दुनिया भर में चल रही है, फिर रही है उसके दिमाग में, उसके जहन में। और इंसान इतना गंदी सोच, गंदी नजर वाला बन गया कि आदमी अपने अपने रिश्तेदार, अपनी औरतें, अपने माँ बाप, अपनी माँ बहन, बेटियां नजर नहीं आती हैं, बच्चियां नजर नहीं आती हैं। आज का इंसान हैवान बन गया है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों पे रेप हो रहा है। दुनिया किस कदर गंदी हो गई, ये गैर छोड़ो, हम मुसलमान हैं, हमारे घर मुसलमानों के हैं, लेकिन आपके जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते उन पर नजर रखिए। वो किससे बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनके कॉलेजों में फ्रेंड्स कौन है, सहेलियां कौन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मोबाइल पकड़ा के लोग समझते हैं कि वो उसके बाद उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है। नहीं होता, आप बाप हैं, आप मां हैं। क्यों है? इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है। भाई ये गलत फहमी में मत हो, मैं दाढ़ी वाला हूं, मैं जुब्बे वाला हूं, टोपी वाला हूं, नमाज पढ़ लूंगा जन्नत में जाऊंगा, नहीं। घर के अंदर तेरी बेटी, तेरा बेटा, बीवी अगर गलत रास्ते पे है और तू नहीं रोकता है तो तुझे जन्नत में जाने का हक नहीं बनता है, हरगिज नहीं बनता है। आज घरों के अंदर जवान बेटे, जवान बेटियां ये मोबाइल के फितने में पड़ के, आपको अंदाजा है, बाज घरों के बातें सुनते हैं, अंदाजा नहीं होता, यकीन नहीं आता कि लड़कियां जो है, लड़के, जवान बच्चों को माँ बाप की इज्जत क्यों याद नहीं आती। अपनी फिक्र तो रहती है, अपनी फिक्र, अपनी सोच, माँ बाप की इज्जत का क्या है। वो माँ बाप, वो माँ जो बच्चे को 9 महीने पेट में पाली है, वो माँ पे क्या गुजरेगी। आज लड़का बोलता है कि नहीं मैं उससे मोहब्बत कर लूं, उससे शादी करता हूं। लड़की बोलती है कि नहीं मैं उसी से शादी करूंगी, करना है तो उससे शादी करूंगी, नहीं तो डूब के मरूंगी। मां का क्या, बाप, वो मां बाप क्या होना जी, जो मां बाप आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल तक पाले। एक बार जरा एहसास करो पेट की तकलीफ का। पेट में, किडनी में स्टोन आता है, मालूम, स्टोन, किडनी स्टोन कितना रहता है जी, वो 10 mm, 20 mm, छोटा सा, कितना तकलीफ देता है आपको। आप किडनी के वो स्टोन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दर्द आया ऊपर नीचे हो जाते, लिड़ते दर्द में। पेट के अंदर जर्रा इतना कंकर आ गया तो तड़प जाते आप। जो मां 2 किलो 3 किलो के बच्चे को 9 महीने पाली है पेट में, उस मां का क्या है, उस मां के बारे में सोचने वाले कौन है। उस मां पे क्या गुजरेगी अगर दुनिया बोलेगी कि तेरी बेटी उड़ गई है, तेरा बेटा भाग गया है, तेरा बेटा गलत काम किया है। बाप जिंदगी भर बच्चों को अच्छा रखने के लिए दिन रात की मेहनत कर देता है, खून पसीना एक कर देता है, किसी के सामने हाथ तक नहीं फैलाता है। बेटी ऐसा काम करती है कि बाप आइंदा किसी के सामने सर भी नहीं उठा सकता है। वो बाप का क्या कसूर है, जो बाप की 50-60 साल की जिंदगी गुजर गई है, अब उसकी दुनिया क्या होना है। आप तो अपनी जिंदगी देख लिए। मेरे मुसलमान भाइयों, माओ और बहनों, एक लड़की की जबान से हमने सुना है, एक लड़की के मुंह से, जब वो ऐसे मसले में थी, हम जाके समझाए, हम और मस्जिद के जिम्मेदारान, लड़की जो है बाप के मुंह पे बोलती है कि मैं करना है तो शादी उससे करता हूं, तुम्हें कान तो भी जाको मरो। बाप अधवा है मालूम, एक हाथ एक पैर अधवा है, माजूर है बाप, और बेटी मुंह पे बोल रही कि जा, और उठ के गई। 3 महीनों में वो यूज कर लिया और फिर छोड़ दिया लाके। फिर कहीं शादी हो सकती है। जिम्मेदार कौन है, बिगाड़ कहां से आ रहा है, इसके बारे में सोचेगा कौन। आप अपने घर के बारे में फिक्र नहीं करेंगे तो आपके घर के बारे में कोई बाहर से आएगा फिक्र करने के लिए।
آج افسوس ہے جی، آج ہمارے کو ہمارے گھر کے مسئلوں کے بارے میں فکر نہیں ہے. سامنے والا گھر اتنا بڑا کئی کو ڈال لیا، اس کی بلڈنگ کئی کو بنا لیا، کار کے پیسے کہاں ہیں، شادی کرتا ہے تو اتنا ہنگامے سے کیوں کرتا ہے. سامنے کے گھر والے، بازو کے گھر والوں کے بارے میں فکر، ان کا جینا کیسا چلتا ہے، کھانا پانی کیسے آتا ہے، اس کی فکر. تیرے گھر کے اندر خود تیرے بیٹے کیسے آئے اس کی فکر نہیں ہے. آج آدمی گھر میں روٹی کھا کو پریشان نہیں ہے، سامنے والا بریانی کیوں کھاتا ہے یہ دیکھ کو پریشان ہے. ہمارے گھر کی خود کی فکر نہیں ہے، ہمارے بچوں کی فکر نہیں ہے، ہمارے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اولاد کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کو سنبھالنا. ہمارے گھر کے بیٹے بیٹیوں کو، خاص کر کے جو لڑکے جو لڑکیاں اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یہ موبائل، اگر آپ کے گھر کے اندر موبائل ہے اور پھر اس پہ اوپر سے اگر نیٹ ہے، برباد کر دیا ہے. یہ ان لمیٹڈ برباد کر دیا ہے. کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے. آدمی پہلے زمانے میں 30 سال 40 سال پہلے جائیں، مشکل سے کوئی پوسٹر آپ کو نظر آتا تھا، اور وہ بھی سیدھا سادہ پوسٹر. آج دیکھو گلی گلی، محلے میں ننگے پوسٹرز. وہ خود ایک بلا ہے تو اس سے بڑی بلا ہے فون میں ہے. کیسی تصویریں، کیسے گانے، کیسے فلماں. بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی کامیں کرنے سے بے حیا لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور ہمارے مسلمان کیا ہے، ان کے دیوانے ہیں، ان کے پاگل ہیں. اور فینس جہنم میں لے کے جاتے ہیں. ایسے یہ فینس، یہ دادا گیری، یہ پوری چیزیں جو آپ دیوانے ہو رہے ہیں. ایک مسجد کے امام ہے، ایک عالم ہے، ایک بڑے گھر کے خاندان کے بڑے بزرگ آدمی ہیں. گھر کے خاندان کے بزرگ آدمی کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت آپ اس کو دے رہے ہیں. وہ خان، یہ خان، کتنے برباد ہو رہے ہیں مسلمان نوجوان. گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ کو اس نے، کیا کیا؟ وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، ساتھ میں آپ کو بھی لے کے جا رہا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر افسوس ہے کہ گھروں کے اندر یہ موبائل دے کے چھوٹ دے دیے ہیں. لوگ کیا بولتے معلوم نہیں، بچہ ضد کرا تو دلے مولانا. کیا بولتے؟ بچہ ضد کرا تو دلے مولانا. ہاں، آپ کا بچہ آ کے بولتا ہے جی گٹکا ہونا، لا کے دیتے آپ؟ بولو، لا کے دیتے؟ کوئی ایک تو ہے لا کے دینے والا؟ کوئی ایک تو بھی ہے نہیں. کیوں بولتے کہ نہیں گٹکا کھانا نہیں، منع ہے، حرام ہے، غلط ہے، بگڑتے بچے. بیڑی سگریٹ لا کو دو، ابا لا کے دیتے؟ 10 روپے کے نا، 20,000 کا دلا رہے ہیں آپ، 30,000 کا دلا رہے ہیں، 10 روپے کے دلانے کیا ہے؟ بولتے کہ نہیں ملیں گے تو بچہ بگڑے گا، صحت بگڑے گی، بیماری آئیں گے. اللہ اکبر، اچھی سوچ ہے، لیکن وہ اتنا برباد نہیں کر رہا جتنا یہ برباد کر رہا ہے. وہ کم، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ غلط ہے، لیکن یہ کم سے کم اس کے جسم کو برباد کر رہا ہے. لیکن یہ موبائل اس کے جسم کو، اس کے ایمان کو، اس کی عزت کو، اس کی جوانی کو، اس کے ساتھ آپ کے گھر کی عزت کو بھی برباد کر رہا ہے. اور پوچھنے والا کوئی نہیں. اس کی نگرانی کون؟ سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں فکر کون کریں گے؟ جمعہ میں ایک بار آتی کیا کہ بیان سن لیا چلے گئے، اور پھر کبھی اجتماع میں کبھی کہیں ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کی عورت، آپ کی بیوی گھر سے باہر گئی، بے پردہ جا رہی ہے، چہرہ کھلا ہے، بے پردگی ہے، گھر میں بے پردگی ہے، خاندان میں بے پردگی ہے، برقع ڈھنگ کا نہیں ہے، پردہ ڈھنگ کا نہیں ہے، ایرے غیرے سے، ان سے بات کرنا، آمنے سامنے، دودھ والے سے، بنگڑیا والے سے، ان سے، ہر ایک سے بات چیت، فون کالنگ سب چل رہا ہے. اور ذرے لوگ ایسے ہیں ان کے دل پر ذرہ بھی غیرت نہیں آتی، ذرہ بھی غیرت نہیں آتی. ایک حدیث سنانا بول رہا ہوں جی، آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا ہے. حدیث یاد رکھ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 3060/2 ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 لوگ ایسے ہیں، لا يدخلون الجنت ابدا، جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. ایک العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. لوگوں، تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہے، قدر کرو ان کی، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو. ماں دنیا کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے.
जो माँ आपके पीछे अपनी जिंदगी, अपना सुख दुख आराम सब भूल के आपको पाली, आपको अंदाजा भी नहीं जी। आप जब छोटे बच्चे थे बिस्तर पे पेशाब कर लिए तो माँ आपको सूखे बिस्तर पे सुला के खुद वो बिस्तर पे सो जाती है। घर में खाना खत्म होने आता है, माँ बोलती है कि नहीं बेटा मेरे को भूख नहीं है, बेटा तू खा ले। माँ बोलती है कि नहीं बेटा मुझे क्या तबीयत बिगड़ी नहीं है, तुझे क्या कि जरा बुखार ऐसा का है जाको जरा दिखा ले। ये माँ का दर्द। आज ये औलाद जो है शादियां होने के बाद बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को ऐसा भूल गए। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं, सुने हैं। बीवी के इलाज पे, बीवी खांसी तो बीवी के नाक से खाली जरा पानी निकला, सर्दी हुई तो स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाते। माँ बुखार में आके तड़प रही है तो 10 रुपए की एक टैबलेट लाको देना मुश्किल है, 100 रुपये हाथ में देना बोले तो 10 बार सोचते। अल्लाह अकबर। माँ बाप के बारे में, वो माँ बाप, माँ की खिदमत क्या है, माँ के पांव तले जन्नत है। अल्लाह अकबर। क्या ये मर्तबा नहीं मालूम? ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है माँ के कदमों तले जन्नत है। अमल क्या है उसके साथ हमारा सुलूक। अजी बीवी की भी इज्जत करो, बीवी की भी सुनो, बीवी की भी खिदमत करो। नहीं, इनकार नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बीवियों से लड़ो, बीवियों को जुल्म करो, नहीं है। अच्छा इंसान बीवी पे जुल्म नहीं करता है, लेकिन माँ बाप वो माँ बाप क्या है? 25 साल तक जो आपको पाले, 25 साल के बाद 1-2 साल में जिससे मोहब्बत होगी उसकी मोहब्बत, उसका केयरिंग आपको नजर आ रहा है। और जो माँ बाप आपके पीछे अपनी जिंदगी, अपनी जवानियां लगा के आपको पाले बड़े करे, मेहनत है उनकी, उनका खून है आपके पीछे, उनकी मेहनत, उनकी खांसी, उनका दर्द आपको नजर नहीं आता। अगर नजर नहीं आ रही, नहीं, आप कितने भी काबतुल्लाह के तवाफ कर लो, चक्करा काट लो अल्लाह के पास, आपका हज, आपका उम्रा काबिल कबूल नहीं होगा अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है। क्योंकि नबी का फरमान है कि माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरा फरमाया मुदमिनुल खम्र, नशे में रहने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला। नशा हराम है, नशा टोटल हराम है। एक खतरा भी हराम है, एक बाटल भी हराम है। ये नहीं कि ज्यादा नशे में आई तक पीना तभी हराम, नहीं। जो चीज हराम है वो टोटल हराम है। एक खतरा भी हराम है, एक बाटल भी हराम है। नशे से बचो, शराब से बचो, बस इतना बोलना है। शराब पे, नशे पे कभी मौका मिला गया तो बोलेंगे, लेकिन अभी इतना बोलना है कि शराब, नशा ये भी हमारे घरों को, रिश्तों को, बीवी बच्चों को तोड़ने में कुछ कम नहीं है। शराब पी के इंसान कितने गुनाह कर रहा है, क्या बेहयाई कर रहा है, बीवी से लड़ रहा है, बच्चों से लड़ रहा है, गालियां बक रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, हराम है, बचिए। तीसरा सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरा इंसान जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो है अद्दय्यूस। दय्यूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दय्यूस कौन है मालूम? अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल-खुब्स, वो इंसान जो अपने घर में, अपने घर वालों में, घर के मर्दों में, औरतों में कोई गलत काम देख के भी जबान नहीं खोलता। अल्लाह अकबर। गलत काम देख के, बेहया काम देख के, गुनाह का काम देख के जबान नहीं खोलता, मना नहीं करता, उसके दिल में जरा भी गीरत, शर्म नहीं आती है, तो वो इंसान कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐसे बेगैरत मत बनिए। आपके घर में बेटियां हैं, बीवी है, औरतें हैं, उनका पर्दा आपका पर्दा है, उनकी इज्जत आपके घर की इज्जत है। वो पर्दे में है नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसके? घर के बड़ों की है। अगर कोई औरत मार्केट में बेपर्दा जा रही है तो मतलब यह कि उसके घर के अंदर कोई बेहया मर्द है। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। अगर कोई औरत, कोई जवान बेटी, कोई बहन अगर मार्केट में, गलियों में बेपर्दा घूम रही है तो मतलब यह कि उसके घर में बेपर्दा, बेहया, बेशरम आदमी है, मर्द है, तभी उसको ऐसा बाहर जाने दिया है। वरना अगर गिरत वाला होता, शर्मो हया वाला होता तो समझाता कि बेटी, ईमान जितनी बड़ी चीज है उतनी ही बड़ी चीज तेरी इज्जत है, तेरी गिरत है, तेरी शर्मो हया है, तेरा चेहरा है, तू हीरा है। हीरो को छुपा के रखते हैं, मार्केट में नहीं डाल दे, टमाटर प्याज के सका ओपन नहीं रखते, हर एक को दिखाई जैसा। ये हीरा है,
हीरे को संदूक खाने में छुपा के लाकर में रखते हैं, तो बेटी तू भी हीरे से कम नहीं है, अपने आप को छुपा। ये जिस्म ये तेरे शोहर का हक है, ये दुनिया के बेहया मर्दों का हक नहीं है। ये बताने वाले कौन है जी? ये बताने वाले आप हैं। आप बताना अपने घर में अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने घर की औरतों को। तो मेरे भाइयों, माओ और बहनों, आप आए हैं, बैठे हैं, सुने हैं, लेकिन सुनने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर के बारे में फिक्र करें, हर एक चीज के बारे में फिक्र करें। बच्चा जवान होने के बाद जिम्मेदारी नहीं उड़ जाती जी। जरे माँ बाप क्या समझते, शादी कर को दे डाली उसकी जिंदगी उसको, कैसे होता है? शादी कर को देने के बाद बेटा उसकी मर्जी का मालिक कैसा होता है? शादी करके देने के बाद आप बाप नहीं होते? होते क्या नहीं? जरूर होते। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका बेटा बहू उसके बच्चे कैसे हैं, क्या हालत में है, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। वो घर की जिम्मेदारी है, इसके बारे में पकड़ है, हर एक को पकड़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एहसास दिलाया है हमको, इसको याद रखने की जरूरत है। हजरात, एक आखिरी हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2104 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में इधर उधर टहल रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा कि वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए, मिलने के लिए आने का वादा करे हैं कि ये टाइम पे आके मिलूंगा, वक्त हो गया है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं, ताखीर हुई है। ऐसा तो कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं करे, जो वक्त बताते उसी वक्त पे आते, लेकिन आज देर हुई है। टहल रहे हैं, अचानक में देखते हैं कि चारपाई बोले तो पलंग, उसके नीचे कुत्ते का एक बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से पूछा, मा हादिही, आयशा ये कुत्ता कहां से आ गया, कुत्ते का बच्चा? आयशा ने कहा, वल्लाही मा अदरी, अल्लाह का रसूल मैंने नहीं देखा। वो कब आया, कहां से आया, मैंने नहीं देखा है। अल्लाह के नबी छड़ी लिए, लकड़ी लिए और उसको हकाल दिए, और कुत्ते का बच्चा बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम जब भी आने का वक्त बताते वो वक्त पे आ जाते, लेकिन आज वक्त हटा के क्यों आए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल कल्बुल्लज़ी काना फी बैतिक, अल्लाह के रसूल आपके घर में जो कुत्ते का जो बच्चा था उसकी वजह से मैं नहीं आया। और फिर फरमाते हैं, इन्ना ला नदखुलु बैतन फीही कल्ब और तस्वीर, बोले कि अल्लाह के रसूल हम फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते वो घर में नहीं आते जो घर में कुत्ते हैं, तस्वीरें हैं, वो घर में हम नहीं आते, तो इस वजह से नहीं, जब आप भगा दिए तब हम आए। अल्लाह अकबर। सोचिए, एक कुत्ते का बच्चा, एक तस्वीर की वजह से फरिश्ते नहीं आते घर में। ये टीवी, ये मोबाइल, ये गाने, ये फिल्म, ये सीरियल, इसमें की जो बेहयाई है, जो नंगापन है, जो नाच गाना है, ये आपके घर में दिन रात चल रहा है, फिर अल्लाह की रहमत कहां से आएगी? अल्लाह का एक फरिश्ता आपके घर में नहीं आता तो अल्लाह की रहमत तो उससे करोड़ों दर्जा बड़ी चीज है, वो कहां से आएगी? आज हम अपने घरों को इससे बदतर बना दिए हैं, इससे बदतर। आज हमारे घर ये मोबाइल, ये टीवी की बला की वजह से दिन रात टीवी चल रही है, खेला देख रहे हैं, फिल्मा देख रहे हैं, सीरियला देख रहे हैं, कॉमेडी शो, ये वो सब चल रहा है। घर के मर्द को, मर्दबाने को इतनी गैरत नहीं आती कि ये क्या चलाती है, क्या देखती है। घर में जवान बेटी है, जवान बेटा है, वैसी तस्वीरें, वैसे गाने, वैसा हीरो हीरोइन को ऐसा नंगा देखेगा, वो करते हुए, ये करते हुए, क्या गुजरेगा उस पर, उसकी जवानी का क्या क्या। ये हकीकत है जी हमारे घरों की, इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं। जरा अपने घरों में मुंह खोलो, जरा टीवी पे, ये मोबाइलों पे जो ला के दे दिए हैं, अल्लाह के पास आपको बहुत बड़ी पकड़ होगी। जो लोग ये काम कर रहे हैं और देख के खामोश हो रही, देखो, और ये समझ रही, बड़ी गलत फहमी, क्या बोले तो जन्नत में चले, तो मैं नमाज पढ़ ले तो होने क्या, मैं दाढ़ी छोड़ू नहीं क्या? आपकी दाढ़ी, आपका जुब्बा, आपकी टोपी अपनी जगह है, लेकिन घर के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं, फिर भी नहीं रोक रही, नहीं संभाल रही, नहीं सुधार रही। अल्लाह के पास बड़ी पकड़ है। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये बयान से आप ये बात सीख के जाइए कि मैं अपने घर के बारे में फिक्र करूंगा, घर की औरतों के बारे में,
वो कहाँ जा रहे हैं? कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां मोबाइल तो दे दिए हैं, दिला दिए हैं, टीवी दिला दिए हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? तवज्जो रखिए, घर की तरबियत बहुत बड़ी है। और अल्लाह के नबी का यह फरमान मत भूलिए, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, व कुल्लुकुम मसऊल, और क़यामत के दिन तुम में से हर आदमी से पूछा जाएगा। बाप से उसकी बेटों के बारे में पूछा जाएगा, भाई से उसकी बहन के बारे में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। आप मां हैं, औरतें, आपकी बेटियों के बारे में आपको पूछा जाएगा, जरूर हर एक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मर्द ये नहीं, औरतें अगर मां हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा, अगर वो बीवी हैं तो उनके शोहरों के बारे में पूछा जाएगा। हर आदमी मसूल है। एहसास, एक तड़प पैदा करो, एक फिक्र पैदा करो। यही बताना बोलना मेरा मकसद था। मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं इस नीयत से कि हम में का हर आदमी, हर मुसलमान अपने बारे में, अपने घर के बारे में सबसे पहले फिक्र करेगा, अपने घर की तरबियत के बारे में, इस्लाह के बारे में, सुधार के बारे में। ये करने का काम है। इसको छोड़ के गांव को सुधारना, एमएलए को सुधारना, एमपी को सुधारना, सीएम को बदलाना तुम्हारा मेरा काम नहीं है। ये अल्लाह हमसे पूछता भी नहीं है। मोदी को क्यों नहीं हटाए, उसको क्यों नहीं लाए, ये अल्लाह आपसे नहीं पूछता है। आपसे ये पूछता है सबसे पहले आप अपने घर में क्या करें। बीवी बेनमाजी थी, नमाजी बने कि नहीं? घर की औरतें बेपर्दा थी, पर्दे वाले बने कि नहीं? लड़का लड़की गलत थे, उनको सीधे रास्ते पे लेने, ये सबसे पहली पकड़। उसके बाद क्या तो बचा तो पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये जो पकड़ है इसके बारे में जरा फिक्र करो। हर कोई यहाँ जो भी आए हैं, बैठे हैं, सुने नहीं आए क्या कि सुने चले गए नहीं, बल्कि जरा फिक्र करो हमारे घर में क्या चल रहा है, घर की औरतें कैसी हैं, घर के मर्द कैसे हैं। सालों साल महीने महीने हो गए कुरान की तिलावत नहीं, और उल्टा शैतानी गाने नाच बजाना सब चल रहा है। तो फिर अल्लाह की रहमत, चैन, सुकून कहां से आएगा? हमें कोई रास्ता रखे ही नहीं तो फिर अल्लाह की रहमत कहां से आएगी? सोचने की, फिक्र करने की, तड़प पैदा करने की जरूरत है। दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझे भी, आप सभी को भी सबसे पहले अपने आप को सुधारने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। अपने साथ अपने घर वालों के बारे में भी ये फिक्र अपने अंदर लाने के अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है आज हम तमाम को यहाँ जमा किया, मुझे आपके सामने कुछ बातें बोलने की तौफीक दी। अल्लाह ताला मेरे बोलने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए, और साथ ही साथ इतना बेहतरीन इंतजाम मर्दों का, फिर पर्दे के साथ औरतों का, खाने पीने का जो भी इंतजाम करे हैं, इसके पीछे जिसकी भी मेहनत है, पैसा है, कुछ भी एक रुपया भी क्यों ना हो, किसकी भी जिसकी भी मेहनत है, वक्त है, अल्लाह ताला हर एक की मेहनत को, हर एक के ताउन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला वो नौजवानों में, वो लोगों में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन निअमुल बदल अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए, और ऐसे नेक इज्तिमाओं में, अच्छे जगहों पर हमें हर मर्तबा हाजिर होने के अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। सुनी हुई और कही हुई बातों पर अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।